Okay. Okay. Ninth rule says that when you are using two units for comparison, okay, let's say ये I'm भी हो गया। comparing one, ये वाला भी हो गया था. Okay, then you can tell me which how to correct the sentences. यहाँ पे क्या changes आएंगे? Which is better, tea, coffee or milk? What is the correct sentence? What is the correct sentence for this? Which is better, tea, coffee or milk? विदाउट मिल्क। Without milk? No, you और have क्या जगह to विदाउट होगा? see. First thing, I've always told you, remember the only changes you have to make are specified what I'm teaching you here. ठीक है? आप competitive exam में जब question देखेंगे, you might not know what part is incorrect or not. But here you know that you are studying adjective, तो यहाँ पर आपको adjective में changes करने हैं ना बच्चे. Tea, coffee and milk are, this is not logical comparison, is not, we are not talking about logical comparison. We are talking about when to use comparative degree and when to use superlative degree. See, again, I'm repeating this rule. If you have forgotten, even if you have done, I'm repeating it. ठीक है? Comparative degree you're using जब आप दो units compare करते हैं. Let's say I'm comparing one of the student from every other student in the class. Okay, still there are only two units. First, the student who is being compared, and the second is all the other students who are being compared with him. ठीक है? दोनों को दोनों आप जो है दो यूनिट ही बनेगा इसका कंपैरिजन में. इफ यू लुक इनटू इट, ठीक है, पहला आपका यही रहेगा जो बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो बाकी पूरे क्लास का एक ग्रुप हो जाएगा. सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू यूनिट्स, आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स लगाएंगे व्हेन योर यूनिट ऑफ कंपैरिजन इज मोर देन टू. ठीक है, आप दो से ज्यादा यूनिट ऑफ कंपैरिजन है आपके सेंटेंस में, तब आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे. Now tell me which is the what will be the correct sentence? Which is better, tea, coffee or milk? How many units are compared here? यहाँ पे compare, sorry, how many units are compared here in this sentence? Which is better, tea, coffee or milk? इसमें comparison किसके बीच में हो रहा? Exactly, more than two. Then what form of adjective? Yes, what form of adjective will be used? Superlative. Exactly. Then is सुपरलेटिव। superlative used here in the sentence? Yes, ma'am. Superlative use हुआ है इस sentence में. Which is No, better? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Exactly, it is comparative degree of adjective. This one is comparative degree. तो यहाँ पे क्या लगेगा? Sentence क्या हो जाएगा? Sentence यहाँ पे क्या होना चाहिए? What is the correct sentence here? Superlative. Superlative होना चाहिए. हाँ, तो superlative क्या होगा बच्चे? Better का? Best होगा, ma'am. Yes, which is best, tea, coffee or milk? ठीक है, this is the rule. When you're comparing more than two units, आप superlative लगाएंगे. Like in this sentence, you're using two units. ठीक है, दो बच्चों के बीच में comparison हो रहा है. He is the best of two students. That means two students are being compared. आपका unit of comparison सिर्फ दो है. तो यहाँ क्या लगेगा? Comparative degree लगेगा, better होगा. Yes, यहाँ पे comparative degree लगेगा. कोई doubt इसमें? No, ma'am. Okay, then moving on. Your next is, as I have told you earlier, when you're using comparative degree of adjective, one unit of one word is if mentioned in the sentence, it is enough for the comparison. Similarly, if you are mentioning one word of superlative adjective form of adjective, it is enough. You don't have to mention more than one superlative form of adjective.
So this sentence, he is the most strongest of all. इसमें कितने adjective use हुए हैं? 2 है मैम, दो कौन से adjective हैं? मोस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। Exactly. And both which form are they both? कौन से form में है दोनों? दोनों सुपरलेटिव में। Exactly. दोनों superlative में है. तो is it necessary to use both in the sentence? नो मैम, ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा तो सही होगा। हाँ, strongest रहेगा तो sentence will be complete and grammatically correct. He is the strongest of all. Okay, so while you are using superlative or comparative degree of adjective or any other adjective, one adjective is enough to make a statement for comparison. Okay. Now next is पहले मैंने आपको rule number 3 में बताया था, when you are comparing a unit फ्रॉम द अदर ग्रुप मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एक बच्चे को अगर मैं बाकी के आपके क्लास स्टूडेंट से कंपेयर करती हूँ, तो व्हेन आई एम कंपेयरिंग विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो मुझे ये मेंशन करना जरूरी है कि जो वो ग्रुप से मैं कंपेयर कर रही हूँ, उस ग्रुप से मैं उस बच्चे को अलग कर दूं, वो एक्सेप्शन करूं, बिकॉज सेम चीज कभी भी साथ में कंपेयर तो नहीं हो सकती ना. लाइक आई कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद बाय माई सेल्फ, राइट? Abhinav can be compared with himself. So if I'm comparing Abhinav with all the other student of BBM class, then I have to exclude Abhinav from the group that I'm mentioning, right? तो ये रूल होता था when you were using comparative degree of adjective. When you're using superlative degree of adjective, you don't have to mention the exception because it is automatically वो अपने आप सेंटेंस का मीनिंग में आ जाता है. जैसे कि इफ यू आर कंपेयरिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट ऑन देयर लाइक मेंटल हेल्थ, मेंटल एबिलिटी और स्ट्रेंथ एबिलिटी, तो जब आप सुपरलेटिव लगाते हो तो सुपरलेटिव कब लगाते थे हम लोग? when you're comparing with the extremeness, right? जब आप होल एक्सट्रीम, कम्युनिटी को जो हाँ, जब आप कंपेयर कर रहे हो बिल्कुल एक्सट्रीम में कि उससे बेस्ट कोई नहीं है, उससे स्ट्रांग कोई नहीं है, ठीक है, जब आप ऑलरेडी बोल रहे हो, जब आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि उससे बेटर कोई है ही नहीं पूरे क्लास में, तो यू आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग कि उसके अलावा आप कंपैरिजन जो है बाकी चीजों से कर रहे हो, ठीक है. इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड इन दिस सेंटेंस when you are using the superlative form of degree, it is already implied in the sentence that उसका जो comparison है वो बाकी लोगों से हो रहा है, ठीक है. तो when you are using superlative form of degree, यहाँ पर आपको other और else लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे कि यहाँ रूल नंबर 3 में देखिए हमने यूज किया था, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल लगाया था ना यहाँ पर. व्हेन यू आर यूजिंग कंपेयर, हाँ, तो जब कंपैरिजन कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री लेकर, तब यहाँ पर मेंशन करना जरूरी था टू एक्सक्लूड दिस फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है. बट अगर आप सुपरलेटिव लगा रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू एक्सक्लूड, that it is automatically implied that it is excluded from the group, ठीक है. जैसे कि she is the most beautiful of all other girls, that means यहाँ पर आप एक्सक्लूजन दिखा रहे हैं जबकि आपको जरूरत नहीं है दिखाने की. जब आप मोस्ट ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, दैट मीन शी इज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अदर गर्ल्स फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है. जब आप सबसे सुंदर उसको बोल रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गई ना, उसका मतलब सबसे सुंदर है मतलब बाकी सबसे सुंदर है, राइट? वो तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हो रहा है उसका उससे. तो आपको यहाँ पर अदर लिखने की जरूरत नहीं है. दिस यू हैव टू रिमेम्बर, यू माइट गेट कंफ्यूज समटाइम्स, ठीक है. तो अगर आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो आपको एक्सक्लूड करना जरूरी है ग्रुप से. अगर आप सॉरी, जब आप सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं तब आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है. शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, ये हो जाएगा इनकरेक्ट. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका? इफ यू आर एक्सक्लूडिंग अदर, सी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल दी गर्ल्स. नहीं नहीं, अदर गर्ल्स नहीं होगा, ऑल दी, हाँ, ऑल दी गर्ल्स होगा, अदर नहीं लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है. ऑल दी गर्ल्स, ठीक है. व्हेन यू आर मेंशनिंग ऑल दी गर्ल्स, दैट मीन्स ऑल दी गर्ल्स मतलब जो एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है जिसके बारे में आपका जो स्पीकर है और लिसनर है उसके बारे में आप
जानते हैं कि किस ग्रुप ऑफ गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, जैसे आपके क्लासमेट क्लास की सारी लड़कियों की बात हो रही है, दो या ही लग फिर सकते हैं। यस, क्या बोल रहे हो बच्चे? दीज दीज और दोज लगाना है दीज आपको। लग सकता है। ये यस, यू कैन मेंशन दीज। देखो, दीज और दोज कब लगेगा? जब आप पॉइंट आउट करोगे कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इफ यू आर मेंशन, अगर आप किसी एक लड़की को, अपने क्लास की एक लड़की को बोल रहे हो ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट का मतलब आप बाकी जो लड़कियां हैं, आपको पता है कि वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स जिसको कंपैरिजन कर रहे हो उन सबको आप जानते हो, उन सबको आप जिसको बोलोगे वो भी जानता है उन सबको, तो वहां पर यू कैन ओनली यूज द। इफ यू आर लाइक, मान लीजिए कि मैं पहली बार क्लास में आती हूँ, ठीक है, एंड आई डोंट नो एनीवन, तो इफ यू आर मेंशनिंग दीज एंड दोज, इट इज लाइक यू आर पॉइंटिंग आउट टू देम, ठीक है। आप पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये जो लड़कियां हैं इनमें से सबसे सुंदर वो है। ओके, समझ में आया कहाँ दीज दोज लगा सकते हो? अभिनव, समझ में आया अभी आपको? यस मैम, यस। ओके, चलिए, तो ये रूल क्लियर हो गया, कहाँ पर आपको अदर लगाना है, कहाँ पे यस, नहीं रूल लगाना नंबर है। 11 क्लियर है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट रूल है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू प्लेसेस, ठीक है। दो ज्योग्राफिकल लोकेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप सुपरलेटिव फॉर्म लगा रहे हैं कंपैरिजन में, तो आप इन लिखेंगे, ऑफ नहीं। कहाँ इन लिखेंगे? कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। इफ यू हैव यूज्ड सम अदर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ऑफ इंडिया लिख सकते थे, बट यहाँ पर आपने क्या लगाया है? सुपरलेटिव लगाया है, ठीक है। डर्टीएस्ट मतलब सुपरलेटिव लगाया है, तो जब सुपरलेटिव लगा दिया है तो यू हैव टू मेंशन इन इंडिया। दैट मीन्स यू आर लाइक कंपेयरिंग कोलकाता टू एवरी अदर सिटी विद इन द रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो जितने भी सिटी हैं, यू आर कंपेयरिंग ईच एंड एवरी सिटी टू कोलकाता, ठीक है। एंड यू हैव मेड अ एक्सट्रीम कंपैरिजन, दैट मीन्स यू आर यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन इन दिस सेंटेंस, ठीक है। तो व्हेन यू आर यूजिंग सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन इन कंपेयरिंग अ प्लेस, देन यू हैव टू यूज इन, ठीक है। उदयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। ओके, यहाँ पर उदयपुर इज कंपेयर टू एवरी अदर सिटी, टाउन, विलेज इन राजस्थान, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द ज्योग्राफिकल लोकेशन इन राजस्थान। इस रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी मैं बता दूं, बहुत सिंपल सिंपल रूल है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम व्हेन यू आर यूजिंग इट इनटू द सेंटेंस और व्हेन आई एम गिविंग यू फॉर करेक्टिंग अ सेंटेंस, ठीक है। रूल्स बहुत सारे हैं, दैट माइट बी कंफ्यूजिंग, बट रूल्स जो हैं वो बहुत इजी हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, जब आप मोस्ट या मोर का यूज करते हो, मुझे ये बताओ मोर और मोस्ट कब यूज करते हैं आप? जब मोर देन इस टू से कंपेयर करें तो मोस्ट यूज करते हैं, और जब मोर देन मैम होता टू है से लेस होते हैं, क्वांटिटी यानी के वन और टू में कंपैरिजन में, कंपेयर और करेंगे तब क्वालिटी वो में मोस्ट नहीं यूज नहीं, करते हैं। आई एम नॉट मेंशनिंग द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आई एम जस्ट सेइंग कि जो वर्ड है, मोर वर्ड है, जो मोस्ट वर्ड है, उसको आप कहाँ लगाएंगे? जिस वर्ड का Why? सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन पाता है Yes, उसके absolutely. When your adjective does not exist in a modified version of superlative or comparative degree of adjective, then you are using more and most, ठीक है। तो जब आप most लगाते हैं किसी सेंटेंस में, superlative degree of adjective लगाते हैं ये most किसी adjective के साथ, तो most जो होता है that also signifies a specific amount of possession in the comparison। कैसे? दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अगर आप ये इसका लिटरल मीनिंग देखें इस सेंटेंस का, दैट मीन्स कि ये सबसे इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। तो सब में से इंटरेस्टिंग बुक है, इसका मतलब क्या हुआ? सब में से इंटरेस्टिंग बुक है, इसका क्या मतलब हुआ? होल होल बुक को कंपेयर कर रहा है। हाँ, तो होल बुक को कंपेयर कर रहा है, तो मुझे ये बताइए कि इज इट लाइक लॉजिकली पॉसिबल फॉर एनीवन टू रीड ईच एंड एवरी बुक दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड? नो मैम। क्या ये
एग्जैक्टली दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स ये तो इलॉजिकल कंपैरिजन हो गया फिर तो यहाँ पर, राइट अगर आपका ये मीनिंग रहेगा सेंटेंस का तो फिर तो इलॉजिकल कंपैरिजन हो गया, क्योंकि आपने जब पढ़ी ही नहीं है सारी किताबें तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं उससे, राइट यस मैम, लॉजिकल हो गया। हाँ, तो यहाँ पर लॉजिक कैसे बैठेगा, जब आप मोस्ट को, मोस्ट लगाने का जब आप पोजेशन दिखाएंगे, पोजेशन दिखाने का मतलब क्या है कि दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, ये जो स्पीकर है ये इसमें पोजेशन लगा रहा है कि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली किताब है, जो मैंने समझे? पढ़ी है, यस। हाँ, तो जब आप मोस्ट यूज कर रहे हैं, अगर इसमें सर्टेन डिग्री ऑफ पोजेशन लग जाता है दैट मीन्स कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो डाटा है उस हिसाब से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? जैसे कि मैम हम Web- अपने कोर्स के बुक में कर सकते हैं ना, जो कोर्स में जो हाँ सब्जेक्ट हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी जो कोर्सेज हैं, ठीक है, आप पढ़ जो रहे जो हैं सब्जेक्ट। बीबीए। हाँ, बीबीए में क्या क्या सब्जेक्ट है मुझे जरा बताइए तो, कोई 2-3 सब्जेक्ट का मैनेज नाम बताइए। फिनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेज, अकाउंटिंग, ठीक है, और तो फिर अगर इफ यूर, इंग्लिश है। हाँ हाँ, इफ यू आर सेइंग कि अकाउंटिंग इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको कंपैरिजन कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग से, या फिर मान लीजिए कि वीएलएसआई से, या कोई सब्जेक्ट जो आप जानते भी नहीं है कि इस कोर्स में होता है, ठीक है, यस। तो आप वो तो इलॉजिकल कंपैरिजन हो गया। तो यहाँ कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं उन सब्जेक्ट्स में से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, समझ में आया? So when you are using most or the superlative form of adjective, so it like donates a certain amount of possession in the sentence. ठीक है, तो just so because it doesn't make the sentence illogical. ठीक है, यहाँ पर illogical comparison नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर एक possession मतलब एक sentence का sense बना दिया जाता है possession की तरफ से, ताकि यहाँ पर logical comparison किया जा सके, ठीक है? मैम कोई एक डाउट सेंटेंस इसमें? में दोनों यूज हो सकता है, मोर एंड मोस्ट, मोर और मोस्ट। नहीं नहीं, मोर एंड मोस्ट दोनों कैसे यूज होगा? सी, मोर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ लगता है, मोस्ट लगता है आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है? जैसे कि अगर इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो मोर इंटरेस्टिंग हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट इंटरेस्टिंग हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल हो गया आपका कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया सुपरलेटिव, ठीक है? यस। समझ में आ गया? हाँ, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट रूल 14 नंबर रूल ये है कि जब आप लाइक के आगे सुपरलेटिव लगाते हैं, स्पेशली मोस्ट और बेस्ट, तो आप उसके आगे द नहीं लगाएंगे। जैसे ये सेंटेंस है, विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक द मोस्ट नहीं होगा, डू यू लाइक डू यू द लाइक मोस्ट नहीं होगा, समझे? यहाँ पर अगर आपने लाइक यूज किया है और उसके साथ सुपरलेटिव स्पेशली मोस्ट और बेस्ट लगाया है तो द नहीं लगेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप इस सेंटेंस में द लगा रहे थे, कहाँ गया वो सेंटेंस? यस, यहाँ पर हटा के आपने द लगाया था ना, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स, ठीक है? तो यहाँ पर आप जब लाइक लगा दोगे, ठीक है, तो आप द नहीं लगा सकते उसके साथ। विच ऑफ द स्टोरीज डू यू द लाइक द मोस्ट नहीं होगा, लाइक मोस्ट होगा। विच ऑफ द मैगजीन्स डू यू लाइक बेस्ट होगा, द बेस्ट नहीं होगा। समझ में आया? द मोस्ट, द मोस्ट नहीं होगा, ओके, यू कैन नॉट यूज द व्हेन यू आर यूजिंग लाइक एंड सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है? द नहीं लगेगा। यस। सॉरी, यस। तो जब आप बेस्ट और मोस्ट लगा रहे हैं उसके आगे अगर आपने लाइक लगा दिया है, कंपैरिजन में लाइक लगा दिया है, तो द नहीं लगेगा, ठीक है? कोई डाउट इसमें? रूल्स इजी हैं, ऐसी हैं, बस आपको याद रखने होंगे, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है आपका? व्हेन यू आर कंपेयरिंग, ठीक है, अगर आप दो एट्रीब्यूट्स या दो फीचर्स लेके कंपेयर कर रहे हो दो यूनिट्स को, ठीक है, जब राम और श्याम में किसी दो चीज पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपने नोकिया का और सैमसंग का फोन में उसका कैमरा और उसका
स्क्रीन क्वालिटी कंपेयर किया, तो मतलब 2 फीचर आप कंपेयर कर रहे हैं, बाकी छोड़कर बस सिर्फ 2 फीचर्स पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, या 2 से ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप कंपैरिजन एक से ज्यादा कोई भी कंपैरिजन करते हैं लोगों में, एक से ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, तो आपका जो एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म में रहे या सुपरलेटिव फॉर्म में रहे, वो एक ही फॉर्म में सारे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो श्याम और राम में कंपैरिजन हुआ है, सॉरी, श्याम और राम में कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पर वाइसर और स्ट्रॉन्गर लगा है, यहाँ पे वाइसर और स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लगेगा, वाइसेस्ट और स्ट्रॉन्गर नहीं लगेगा, दोनों कंपैरेटिव में है, कंपैरेटिव में ही रहेंगे दोनों। अगर दोनों को सुपरलेटिव करना है तो दोनों सुपरलेटिव में रहेंगे। अगर 2 से ज्यादा भी रहे तो 3 रहे या 4 रहे तो चारों जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में या तो रहेंगे चारों, या फिर सुपरलेटिव रहेंगे में तो चारों सुपरलेटिव में रहेंगे। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? और एक बात समझा दूं अगर डाउट है तो? डाउट नहीं है? यस मैम, एक बार और बताएं। देन वाइजर एंड सी जब आप कंपेयर कर रहे हो 2 चीज में, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसका राम का कंपैरिजन श्याम से किया गया है, किस पे कंपैरिजन किया है? वाइसनेस यानी कि उसकी समझदारी पे कंपैरिजन किया गया है, और उसकी स्ट्रेंथ पे कंपैरिजन किया गया है। तो जब दोनों 2 चीज पे एक से ज्यादा अगर एडजेक्टिव पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप ना, या तो आप कंपैरेटिव फॉर्म लगाएंगे दोनों में, या 4 हैं तो चारों में, ठीक है। अगर आपको सुपरलेटिव लगाना है, ठीक है, आपको सुपरलेटिव लगाना है, तब आप चारों पे सुपरलेटिव लगाएंगे, ठीक है। जितने भी फीचर्स पे आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं तो दोनों पे आप सुपरलेटिव लगाएंगे, या फिर दोनों पे कंपैरेटिव लगाएंगे, जो 2 भी लगाएंगे अलग वो सब पे अलग। लगाना होगा। हाँ हाँ, जितने भी फीचर्स पे कंपेयर करेंगे, दोनों का चारों का या 5 जितने भी फीचर हैं, उनका फॉर्म अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही फॉर्म पे रहने चाहिए, या तो कंपैरेटिव डिग्री पे या फिर सुपरलेटिव डिग्री पे। समझे? यस। चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट इज, जब आप कुछ वर्ड्स मैंने जैसे इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये वर्ड्स जो होते हैं इनके जैसे सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं ना, तो आप मोर और मोस्ट यूज करते हो। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब अपने आप में एक मीनिंग होता है, जिसके लिए आपको उसके साथ कुछ एक्सटर्नल एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर सुपरलेटिव फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं है, इफ दे डज नॉट एग्जिस्ट इन EST फॉर्म और ER फॉर्म में नहीं है तो भी आपको मोर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एब्सोल्यूट हो गया, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट जो वर्ड है वो इटसेल्फ बता रहा है कि एक्सट्रीम आपका कंपैरिजन हो रहा है, राइट। अगर आप बोल रहे हैं कि द पेंटिंग इज परफेक्ट, दैट मीन इट इज, उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग हो गया कि बेस्ट है, ठीक है, उसका यस मैम। ऑटोमेटिकली मीनिंग हो गया कि बेस्ट है, राइट। तो उसमें आपको बेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे परफेक्ट ही कुछ लगेगा। वर्ड्स, हाँ, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिन पे आपको कंपैरिजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली कंपेयर कर देते हैं। ये वर्ड्स सब पढ़ लीजिए, कौन से वर्ड्स हैं। स्ट्रीम इंटायर चीफ। ये मैं फाइल आपको भेज दूंगी, लेट्स मेक इट श्योर कि ये कंप्लीट हो चीफ जाए। मतलब तो हो गया 16 मैम ये ना। चीफ मतलब जो हेड रहता है, ठीक है, जैसे मुखिया बोल चीफ सकते हैं, मिनिस्टर हो मुखिया गया। को, हाँ, चीफ मिनिस्टर हो गया, तो वो कहीं का हेड रहता है। और अब जब वो हेड ऑलरेडी है तो उसमें आपको जरूरत बताने नहीं है कि वो हाईएस्ट पोजीशन पे है ना। वो ऑलरेडी चीफ है, जो अगर चीफ आपने लगा दिया दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी इन हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 17th रूल आपका क्या है, लेट मी जस्ट है
जब आप लाइक या सॉर्ट जैसे वर्ड्स आप यूज करते हैं, ठीक है, अगर आपने किसी सेंटेंस में काइंड लगा दिया है, ठीक है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस टाइप का फ्रेज यूज किया, तो ये ऑलरेडी रेफर करता है कि ये सिंगल नंबर ऑफ यूनिट के लिए यूज हो रहा है, एक सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए या सिंगल एट्रीब्यूट के लिए, जो भी है ये एक सिंगुलर चीज रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जब ये सिंगल चीज रिप्रेजेंट करता है तो इसके साथ आप दीज और दोज नहीं लगा सकते, बिकॉज दे रिप्रेजेंट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, जो भी पर्सन है या फिर आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट कोई हो गया, अगर एक रहेगा तो उसके लिए दीज नहीं ना लगाएंगे, उसके लिए दिस लगाएंगे या दैट लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ किसी चीज सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप दीज और दोस नहीं लगाएंगे। जैसे कि आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है, जब आपने लाइक काइंड यूज किया है तो यहाँ पर क्या हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा। इस सेंटेंस में इफ यू आर यूजिंग काइंड, तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट सिंगल फॉर्म ऑफ यूनिट। तो जब आप सिंगल फॉर्म ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, दिस लगेगा, दीज लगेगा, दैट लगेगा, दोस लगेगा, क्या लगेगा। क्या लगेगा बोलिए, क्या लग जाएगा। योर वॉइस इज नॉट क्लियर बच्ची। दिस होगा मैम, दिस होगा, ओके, आई डोंट लाइक दिस दिस लगेगा काइंड, यस दिस काइंड ऑफ शर्ट, मतलब जब काइंड है तो यहाँ दिस पर, लगेगा। These आई kinds का डोंट हाँ मतलब लाइक क्या हाँ, हो दिस काइंड ऑफ। सॉरी, काइंड्स का मतलब क्या हो गया। गया? These kinds का मतलब these kinds of shirts. मतलब इस तरह की चीजें मुझे पसंद नहीं है या इस तरह के शर्ट्स मुझे पसंद नहीं है, दैट इज द मीनिंग। काइंड्स ऑफ मतलब कि जैसे एक कलर होता के है ना सेंस कि में आप, हो सकता है या फिर क्वालिटी के सेंस में। हाँ वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस फीचर को आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स द स्पीकर इज इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ही इज इंडिकेटिंग टू द लिसनर, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहती, फोन पे बात कर रही हूँ, दैट मीन्स इट यू आर नॉट क्लियर कि किस बारे में बात कर रही हूँ, बट इफ वी आर फिजिकली प्रेजेंट एट द सेम टाइम ऑन द मोमेंट एंड मैं ऐसे इंडिकेट करूं कि ये वाली चीजें मुझे पसंद नहीं आती है, दैट मीन्स यू एंड आई बोथ नो कि क्या स्टेटमेंट में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ शर्ट में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी द मटेरियल, इट कैन बी द लेंथ, इट कैन बी द टाइप, ठीक है, कलर भी हो इट सकता कैन, हाँ इट कैन बी द कलर, इट कैन बी द प्रिंटिंग, है, एनीथिंग, ब्रांड। ठीक है। ब्रांड, यस ब्रांड भी हो सकता है, कुछ भी जो शर्ट के बारे में कोई एक एट्रीब्यूट या बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कि स्पीकर को पसंद नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ही इज जस्ट इंडिकेटिंग कि उसको उस टाइप के शर्ट्स नहीं पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ शर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि काइंड्स ऑफ शर्ट्स जो है वो प्लूरल है एक्चुअली में, बट व्हेन यू आर यूजिंग काइंड एंड सॉर्ट ऑफ वर्ड, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट अ सिंगुलर यूनिट, ठीक है, एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज व्हाई आपको यहाँ पैंट्स में पर भी ऐसा है, शर्ट्स में भी ऐसा लग गया, सॉरी, ऐसा लगा हुआ है फुल। हाँ एस लगा हुआ है, दैट मीन्स आपको ये नहीं समझना है कि ये प्लूरल है तो हम यहाँ पर प्लूरल दीज दोज यूज करेंगे, ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज व्हाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दीज दोज नहीं आएगा, दिस और दैट आएगा, समझे। इसीलिए यहाँ पर ये रूल बनाया गया है कि आपको समझ में आए, बिकॉज काइंड्स ऑफ शर्ट सुनने में भी लग रहा है एंड इट इज लिटरली मीनिंग कि प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो दिस वो कहाँ लगेगा काइंड्स ऑफ, मैम, दिस और दैट? दिस यहाँ लगेगा बच्चे, दीज है ना, दीज की जगह दिस वहाँ लगेगा। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट, सी I'll write here, I don't like दिस this काइंड ऑफ। kinds of shirt, okay, this is your correct sentence, समझ में आ गया।
ओके These सो और those नहीं नेक्स्ट, लगेगा ये। हाँ दीज और दोस नहीं लगेगा, बिकॉज इस सॉर्ट भी लगेगा, सॉर्ट ऑफ भी अगर लगेगा, काइंड की जगह सॉर्ट ऑफ भी रहेगा, तो आपको दीज और दोस नहीं लगाना है उसके साथ, ठीक है? समझ गए? चलिए Yes. फटाफट विल कवर अप दिस लास्ट टू। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है? ये सेंटेंस का एक फॉर्मेट है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ प्लूरल लगेगा, कहाँ सिंगुलर लगेगा। सी यहाँ पर क्या फॉर्मेट है देखिए, पहले वन ऑफ, ठीक है? जैसे यहाँ सॉर्ट ऑफ था ना, काइंड ऑफ था, यहाँ पे वन, हाँ वन ऑफ Note the रहेगा, structure of हाँ उसके बाद ये कुछ रहेगा यहाँ पर क्या हाँ लगेगा one of फिर हाँ कुछ भी यहाँ पर रहेगा एक स्टेटमेंट में कंपैरिजन करने के लिए, इफ नॉट, ठीक है, मतलब अगर ये नहीं तो ये, ठीक है? फिर यहाँ पर दूसरा चीज रहेगा, फिर ये सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगेगा यहाँ पर। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट राइटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ राइटर्स यूज हो रहा है, यहाँ पर सिंगुलर यूज हो रहा है। singular है। हाँ कैसे हो रहा है ये मैं बताती हूँ। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, ठीक है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर मतलब जितने भी ग्रेटेस्ट राइटर हैं, ठीक है? ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? आप सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लगा रहे हो, दैट मीन्स आप पहले ही बता रहे हो कि ये सबसे अच्छा है। तो फिर वन ऑफ क्यों लगाया आपने? जब आप सबसे अच्छा बता रहे हो उसको, तो आप वन ऑफ क्यों लगा रहे हो? वन ऑफ मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल में से या फिर ग्रुप ऑफ राइटर में से सबसे अच्छे जो राइटर हैं उसमें से वो सबसे एक हो